Okay, welcome to the recording, the first lecture of introduction, the first lecture on fuels and energy. This is going to be a new topic because for the first time we are offering fuels and energy. Till last year it was fuels and combustion. So a lot of information will not help you from last year. यानी इस दफ़ा का जो पेपर होगा वो पहली दफ़ा एनर्जी पे फोकस होगा तो आपके कंबशन का इतना जोर उस पर नहीं होगा. So you have to bear with me and go along with the flow. So before I go on, I would like to tell you about an introduction to fuels, which is our lecture 1, and I am focusing on CLO1. After the class, I've already shared the outline, so you can see which CLO lies in which place. Acha, objectives of this lecture. At the end of this lecture, a student will be able to obtain the following objectives. यानी इस lecture के बाद मैं expect करता हूँ कि you should have a general introduction about fuels. You should know about the main fuels, the types of industrial fuels. कि industry के अंदर कौन से fuels use होते हैं. Understand the characteristics of a good fuel. This is very important. There is one thing called a fuel, but there is one thing which is called a good fuel. You have to decide that which fuel you want to use. कहने का मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल फ्यूल्स होते हैं. मैं आपको बोल दूं हाइड्रोजन भी फ्यूल है, मैं आपको बोल दूं पेट्रोल भी फ्यूल है, मैं आपको बोल दूं डीजल भी फ्यूल है, केरोसिन भी फ्यूल है. आपको पिक करना है कि आपके काम के लिए सबसे एफिशिएंट और अच्छा फ्यूल कौन सा है. ये पिक करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट फ्यूल. सो दीज आर द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स दैट आई एक्सपेक्ट यू टू नो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. चलें इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. When we talk about fuel, fuel असल में होता क्या है? Fuel is any material which can be made to react with substances. यानी दूसरे substances होते हैं, कोई material के साथ react करते हैं in order to release energy in the form of heat which can be used for work. यानी fuels के अंदर आप दूसरे substances को react करोगे, मोस्ट ऑफन ये ऑक्सीजन होता है. आप जब इसको आपस में रिएक्ट करोगे आपके पास हीट रिलीज होगी और ये जो हीट रिलीज होती है इससे आप कोई ना कोई वर्क सर परफॉर्म करते हो. तो ये आपका एक जनरल रूल है फ्यूल का. आम तौर पे हम बाद में इसकी बात करेंगे. तमाम जो फ्यूल्स होते हैं ना वो कार्बन पे डिपेंड होते हैं, which means that one characteristic common in every fuel is it has कार्बन. आप कोल की बात कर लें, कोल में कार्बन होगा. आप बायोमास की बात कर लें, बायोमास में कार्बन होगा. आप वुड की बात कर लें, वुड विल हैव कार्बन. So most of the fuels they will contain the carbon. They are organic materials. Initially the fuels used for materials were capable of releasing chemical energy. इसकी हिस्ट्री क्या है? जब इनिशियली हमने फ्यूल्स को डिस्कवर किया था तो it was only used for materials that were capable of releasing chemical energy. But with time this changed. With the progress of time it has been applied to other sources of heat energy. यानी टाइम के एवोल्यूशन के साथ हम न्यूक्लियर एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं. सबसे कॉमन एग्जांपल है जब हम न्यूक्लियर एनर्जी में फिजन, फ्यूजन, यूरेनियम यूज करते हैं. दीज आर also non-renewable resources, but one of the types of energy is nuclear energy, which we will discuss. If you followed the guidelines के अंदर हमने यही लिखा हुआ था कि जो आखिरी CLO है वो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी के ऊपर होगा. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आपकी न्यूक्लियर एनर्जी होगी. इसके अलावा आपके पास टाइडल एनर्जी थी, हाइडल एनर्जी थी, विंड एनर्जी थी, पावर एनर्जी थी. These were different forms of energy. So as time evolved from chemical energy we went towards the other forms of energy. General uses of fuels. अब बात करते हैं कि हम फ्यूल्स कहाँ पर यूज कर सकते हैं. The heat energy released by the reaction of fuels is converted into a mechanical energy via a heat engine. Very important point. ये पॉइंट के ऊपर मैं दोबारा आगे आऊँगा इसी लेक्चर के ऊपर. I will focus on this point, but
Look at what the point says. Heat energy which is released, obviously when a fuel is burned, you're burning with oxygen, there's an exothermic reaction, there's some heat energy release which you're using it as work. यही definition था. Now what does the heat engine do? Yeah, what is the concept of your heat engine? From your past knowledge of thermodynamics, Chale, before I go on, I will ask one of you, tell me what is a heat engine? Because I want interaction in the class. This is an online class. What do you understand by the term heat engine? Anyone before I start picking names? थर्मल एनर्जी को जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे. अच्छा, बस यही होता है हीट इंजन. चले, मैंने मान लिया कि आपने कुछ हद तक सही बोला है, मगर अगर आप मुझे ये डेफिनेशन देंगे हीट इंजन का तो इसमें कीवर्ड्स नहीं है. 89 आपका कोई आउटपुट? रैंडमली एक सेकेंड मैं रैंडमली स्टूडेंट्स को पिक करूंगा और जरूरी नहीं है कि इस हर क्लास के अंदर सेम स्टूडेंट हो. These marks will be added into your sessionals for class participation and being aware. और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं आपको हर क्लास के बाद होमवर्क दूंगा और ये होमवर्क कर आना आपको ज़रूरी है. लाजमी नहीं है मैं आपसे पूछूंगा, मगर मैं पूछ भी सकता हूं. और जिसने नहीं किया है तो वो उसका मसला है, आपके ही सेशनल के नंबर जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मुझे इस तरह जज भी करना है. जी 89 क्या हीट इंजन क्या होती है? सर ऐसा इंजन जो थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल में. उसके अलावा कोई चीज आप मिस कर रही हैं? सर थर्मोडायनामिक प्रोसेस के जरिए करेगा. थर्मोडायनेमिक्स के जरिए करेगा. ये क्या? एनीवन एल्स कोई ट्राई करना चाहता है कि मिस क्या कर रहे हैं? यस सर. चलें, आई गिव यू अ हिंट. जब भी आपको हीट इंजन थर्मल कर रहे एनर्जी, थे तो हीट, जी बोले सर थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और वो मैकेनिकल वर्क के लिए यूज होगी. अच्छा चलें यूं बोलते हैं कि जब हम सर फ्यूल हीट एनर्जी होगी. नहीं, जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते थे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, तो मैं आपको हिंट देता हूं, देयर वर टू मेन स्टेटमेंट्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ. दो मेन स्टेटमेंट्स क्या हैं? एक केल्विन का लॉ था, एक क्लॉसियस का लॉ था. इतनी बड़ी हिंट दे दी. सर जो एनट्रोपी होती है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है. नहीं, मगर ये स्टेटमेंट तो नहीं है ना. चलें, मेरा ख्याल है आप लोग भूल गए हैं, बट रिवाइज ऑन योर हीट इंजन. द रीजन आई एम फोकसिंग ऑन दिस इज बिकॉज इट्स गोइंग टू कम अगेन. हीट इंजन के दो बात नहीं कर रहे आप टेम्परेचर. एक तो आपका टेम्परेचर था फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी. हीट इंजन के अंदर यही था, बिकॉज हीट इंजन वाज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. हीट पंप इसका रिवर्स था. दूसरा ये था कि जो आपका वर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, not 100% of it would be produced. जो आप लोग बोल रहे हैं एंट्रोपी, सही बोल रहे हैं, मगर आप इसको फ्रेज नहीं कर पा रहे थे. बिकॉज व्हेन एंट्रोपी इज प्रोड्यूस्ड, एंट्रोपी इज unusable energy. That means the actual amount of work that you're inputting is not going to be the same as your output. मसलन ये कि अगर आपने 100 joules of energy input किया, आपको आउटपुट मिला 70 joules of energy. बाकी 30 जूल ऑफ एनर्जी वहां पर हैं, बट यू कैन नॉट मेक देम यूजफुल वर्क. इसका मतलब ये हुआ दैट व्हाई आई एम कमिंग टू दिस इज नो फ्यूल इज एफिशिएंट. आना मैं इस पॉइंट के ऊपर था कि नो फ्यूल इज एफिशिएंट एंड वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चूजिंग अ गुड फ्यूल इज एफिशिएंसी. अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, what is the most important characteristic of choosing a good fuel? सबसे important characteristic कहीं लिख लें, याद रख लें, अपने साथ बुक भी खोला करें, पॉइंट्स बनाया करें. The most important characteristic of choosing a good fuel is calorific value. I repeat, the most important characteristic for choosing a good fuel is calorific value.
इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज आती हैं, नंबर 2 के ऊपर एफिशिएंसी होती है, कैलोरीफिक वैल्यू फॉलोड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ चूजिंग अ गुड फ्यूल। इसीलिए आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट दैट मैकेनिकल एनर्जी वाया हीट इंजन। At other instances, the heat is used for warmth, cooking or for industrial purposes. जो आपकी heat produce हो रही है ना, इस heat engine के जरिए ये किस चीज में use हो रही है? ये warm होने में use होती है, cooking में use होती है, industrial purposes में use होती है. It is also used for lighting purposes known as illumination, which comes along with combustion. जब आप कोई चीज को कंबस्ट करते हैं तो आपको एक लाइट भी मिलती है, इस लाइट को हम इल्यूमिनेशन बोलते हैं। कंबशन का मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया है, आगे आपको मैं डेफिनेशन, यू विल फाइंड द डेफिनेशन। But had this course been fuel and combustion, a lot of combustion problems would have been done. But now I will try to give a general outview and try to make it as less as possible because the focus is more on energy. Apart from this, fuels are also used in cells of organisms for cellular respiration. जब हमें सांस लेनी होती है, ब्रीदिंग करनी होती है, तो हम ये हमारे जो सेल्स हैं ना, ऑर्गेनिजम्स, हमें ये भी फ्यूल यूज करते हैं। हमारा जो बायोमास वगैरह जो तमाम फ्यूल्स हैं, बिकॉज फ्यूल का ये मतलब नहीं है सिर्फ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, दोज आर टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, मल्टीपल फ्यूल्स होते हैं। दे आर यूज्ड इन कॉन्ट्रास्ट विद अदर सब्सटेंसेस एंड डिवाइसेस फॉर स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी, एग्जाम्पल्स बैटरीज एंड कैपेसिटर्स, ये भी फ्यूल्स को यूज करते हैं। तो ये कुछ कॉमन यूजेस हैं हमारे फ्यूल्स के जो कि यूज होते हैं जनरली। अब सिर्फ मैंने कंबशन को टच किया है, वी विल टेक अ लुक एट व्हाट इज कंबशन। कंबशन इज आल्सो नोन एज बर्निंग। कहीं पे इफ यू रीड द वर्ड इन केमिकल इंजीनियरिंग एज बर्निंग, you should realize that it is another name for combustion. It is a high temperature exothermic redox reaction. यानी conditions of combustion क्या होगी? First condition, your temperature should be high. Second condition, exothermic reaction. Third condition, redox reaction, यानी oxidation reduction. अब कंबशन के अंदर अगर मैं कंबशन की बात कर रहा हूं तो सबसे अहम बात क्या होती है? कंबशन के अंदर दो तरह के कंबशन होते हैं, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। दोनों के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज ऑक्सीजन। और अभी मैंने आपको बताया था, गोइंग बैक टू दिस स्लाइड, दैट अ फ्यूल इज एनी मटेरियल व्हिच कैन बी मेड टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस. Your other substance is oxygen in order to release heat. और यही बात हो रही है, look at the word release heat. Exothermic gives out heat, यानी combustion is part of a fuel. जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा so it will give out heat. और redox reaction कहाँ हो रहा होगा? ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा और जो दूसरा उसका फ्यूल है आपका, बी इट मीथेन, बी इट इथेन, जो भी आपका फ्यूल है वो एक्सेप्ट कर रहा होगा। इसीलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन माना जाता है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन अ फ्यूल, जो आपका फ्यूल है ना वो आपका रिडक्टेंट होता है, एंड एन ऑक्सीडेंट इज यूजुअली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीडाइज्ड गैसेस, प्रोडक्ट्स इन अ मिक्सचर टर्म्ड एज स्मोक. It does not always result in fire. अच्छा, जब आपका जो फ्यूल को आप बर्न कर रहे हो कंबशन, लाजमी नहीं है कि हमेशा फायर प्रोड्यूस हो, बट व्हेन इट डज, फ्लेम plays a crucial role in identifying the reaction. कभी कभी होता है कि आपका कंबशन फ्लेम प्रोड्यूस करता है, और जब फ्लेम प्रोड्यूस हो जाती है तो फिर आपको रिएक्शन आइडेंटिफाई करने में मदद होती है, क्योंकि फ्लेम भी 3 या 4 किस्म की फ्लेम्स हैं, 3 या 4 किस्म की फ्लेम्स होती हैं। तो इसीलिए जब फ्लेम प्रोड्यूस होती है तो आपका रिएक्शन आइडेंटिफाई हो सकता है।
अब here the last point is important that combustion can be complete or incomplete. Here I would like to ask one of you कि कोई volunteer कर बताए कि complete combustion और incomplete combustion में क्या फर्क है. (31) What is your viewpoint? What is the difference between complete combustion and incomplete combustion? सर कंप्लीट कंबशन में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमेनिंग नहीं रहते होंगे, वो कार्बन के साथ सारे रिएक्ट कर जाते हैं. तो क्या होगा? सर तब कंप्लीट कंबशन होगी, और इनकम्प्लीट में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स सारे रिएक्ट नहीं करवा होंगे कार्बन से. देखें, सारे नहीं रिएक्ट होंगे. दैट इज आई वुड से इट्स अ वीक आंसर. हो सकता है ऑक्सीजन की क्वांटिटी इतनी कम हो इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर कि सारे मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रहा हो या स्लो रिएक्शन हो. ये मैंने आपको पढ़ाया था CPP 1 के अंदर, हाउ टू डिफरेंशिएट. जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो मैंने ही, मेरा ही कोर्स है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ. कुछ और सोचें. चलें किसी और से पूछते हैं. कौन सर है? कंप्लीट कंबशन में बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होगी और इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड. दैट इज द मेन डिफरेंस कि अगर कोई चीज कंप्लीट कंबशन है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होगी. अगर कोई चीज इनकम्प्लीट कंबशन है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लाजमी प्रोड्यूस होगी. कार्बन भी प्रोड्यूस होता है मगर कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन थिंग. यानी कोई रिएक्शन है जिसके अंदर आपका 1% भी कार्बन मोनोऑक्साइड अगर प्रोड्यूस हो जाए ना, even though it's very less, it is incomplete combustion. Complete combustion के अंदर 100% carbon dioxide is going to be produced. There is going to be no presence of carbon monoxide. Please remember that. चलें, अब बात करते हैं. अब तो ये तो बेसिक्स थे फ्यूल के. अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल फ्यूल्स के ऊपर. इंडस्ट्रियल फ्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू टू जनरल categories. I will change the word. Industrial fuels are divided into two general categories. They can be based on their physical properties as well as their occurrence. Based on physical properties का मतलब they can be solid, liquid और gas. इनको हम divide करके बोलते हैं solid fuels, liquid fuels, gaseous fuels. We will talk about the examples in this general introduction and then focus on the main types from tomorrow. On the basis of occurrence. Occurrence का मतलब ये होता है कि आपके प्राइमरी फ्यूल्स हैं या आर्टिफिशियल फ्यूल्स हैं. अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि अब ये टर्म्स क्या हैं, प्राइमरी, आर्टिफिशियल, सॉलिड, लिक्विड, गैस. देखें, साइड बाय साइड चलते हैं. कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल फ्यूल. पहली कैटेगरी है सॉलिड फ्यूल्स. अब सॉलिड के अंदर दो टाइप्स ऑफ फ्यूल्स होते हैं. प्राइमरी जो आपके नेचुरल फ्यूल्स होते हैं, सेकेंडरी जो आप आर्टिफिशियल फ्यूल बोलते हैं. सॉलिड फ्यूल्स में देखें प्राइमरी में क्या आएगा, वुड आएगा, कोल आएगा, पीट आएगा और डंग आएगा, एनिमल डंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्योर. सेकेंडरी या आर्टिफिशियल के अंदर आपके पास कोक आएगा, चारकोल आएगा. ये क्या चीजें हैं, दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड टुमारो इन सॉलिड फ्यूल्स. बट वैसे आपको मैं बता दूं, कोक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल. जहां पर कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है उस चीज को हम कोक बोलते हैं. और पेट्रोलियम रिफाइनरी जो आप एक टॉपिक आगे पढ़ेंगे, टॉपिक नहीं कोर्स आगे पढ़ेंगे, उसमें एक पूरी प्रोसेस होती है कि वी डू नॉट वांट कोक, वी यूज अ डीकोकिंग प्रोसेस. बट दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेकेंडरी सॉलिड फ्यूल. इसी तरह लिक्विड फ्यूल होता है. लिक्विड फ्यूल के अंदर जो नेचुरल होगा ना वो पेट्रोलियम होगा. अब पेट्रोलियम इज अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी. पेट्रोलियम के अंदर यू विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्यूल्स, केरोसिन, नैफ्था, उसके बाद आपका डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, हेवी लुब्रिकेटिंग ऑयल, लाइट लुब्रिकेटिंग ऑयल, गैस ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल, ब्ला ब्ला ब्ला. और इसी तरह आपका एक सेकेंडरी होगा जो आर्टिफिशियल फ्यूल होगा. अब आर्टिफिशियल के अंदर आपके पास ये आ जाती हैं
जो इथेनॉल हो गई, इसके सब टाइप्स आ जाएंगे। अब इसी तरह गैसियस फ्यूल्स हैं। गैसियस फ्यूल्स के अंदर एक प्राइमरी आपकी नेचुरल गैस होगी, और जो उस नेचुरल गैस से जो आप क्रिएट करोगे वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, प्रोपेन, मीथेन। जब आप नेचुरल गैस को ब्रेक कर रहे हो, कोल गैस, वाटर गैस, blast furnace gas, coke oven gas, CNG. If we have time, we will focus on these separately. इनमें से एक या दो तो हम पढ़ेंगे, हम सिन गैस पढ़ेंगे, हम फिशर ट्रॉप रिएक्शन पढ़ेंगे, ये दो चीजें तो पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूंगा किस तरह आपका शेड्यूल बन रहा है, क्या बन रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको फिर बताऊंगा। अच्छा, I hope no one is having a problem in English. If you do have a problem, stop me. या अगर आपको समझ नहीं आए, I'm trying to mix both the language because we have a mix of international student and national students. So if I go purely in Urdu, then maybe some people do not understand. So please stop me if you don't understand, and I will repeat my words in Urdu. Okay, different types of fuels and their characteristics. I have shown you different types of fuels and their characteristics. Solid fuels example. The first picture is wood. Under the wood, there is a picture of coal. Liquid fuels are used in lanterns. And over there, petrol is being filled. Gaseous fuels, CNGs in your rickshaws and your gas cylinders. Cooking. Okay. Now, this is an important portion. यहाँ पर बात मजे की आती है। When I ask you the basic characteristics of a good fuel, कभी भी आपसे ये सवाल पूछा जाए ना कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल हैं, तो मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मगर देखें सबसे ऊपर लिखा है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। जो फ्यूल होता है ना, उसकी जितनी ज्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो उतना अच्छा वो फ्यूल होगा। अगर मैं आपको एक टेबल दे दूं एग्जाम में और मैं आपसे ये पूछूं A, B, C, D, E, you do not know the fuel. If I ask you that which is the best fuel to be used, best characteristic fuel, you don't know any other properties, you only know the calorific value. The higher the calorific value, the better is that fuel. What is calorific value? Calorific value is basically the energy per mass. I will go back on that slide. Calorific value of a fuel is defined as amount of heat produced in kilojoules when 1 kilogram of fuel is completely burned. यानी जब आपने 1 kg of फ्यूल को बर्न किया है, जितनी आपकी हीट रिलीज हो रही है, ये उसकी किलो जूल्स के अंदर, ये उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। तो इसके ऐसा यूनिट क्या हो गए, या डिफरेंट यूनिट्स क्या हो गए? किलो जूल पर केजी, जूल पर केजी भी हो सकता है। द हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, द मोर हीट इट प्रोड्यूसेस व्हेन बर्न्ड। जितनी ज्यादा आपकी कैलोरीफिक वैल्यू हो उतनी ज्यादा आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। इन अदर वर्ड्स, the calorific value is directly proportional to the heat produced when a fuel is burned, and that is exactly what you want. जितनी ज्यादा आपको हीट मिलेगी उतना ज्यादा आपका फ्यूल अच्छा होगा। So higher calorific value of a fuel is better in the fuel. In short, अब अभी तक मैंने कोई न्यूमेरिकल्स डिजाइन नहीं किए हैं, विद टाइम न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। अब ये जो आपका किलो जूल पर केजी है, ये क्या चीज है? ये है एसआई यूनिट्स। एंड नोइंग मी, यू नो दैट आई ले ग्रेट एम्फेसिस ऑन American units and conversion of units also. So some basic conversions you should know. The two basic conversions of energy that you should know based on the American system and the SI system. 1 BTU यानी 1 British thermal unit जो अमेरिकन सिस्टम में होता है,
is 1055 joules. One British thermal unit is 1055 joules. Similarly, 1 calorie is 4.184 joules. Because I can easily give you a question in which the calorific value is, instead of joules per kg, it is in calorie per pound, BTU per pound. So you should know the conversion between BTU and joules, calorie and joules, kg and pounds, or kg and gram for that matter, but that is an easy one. Kg and pound is 1 kg is 2.20 pounds. So these are the three conversions you should know: kg, pounds, calorie, BTU, calorie, pounds and kg, joule and BTU, joule and calorie. Okay, going back. Now I have written the points over here, and I will tell you the reason. You have to Google this out and see for yourself, because everything cannot be written on the slides. Most important point, high calorific value. Another good characteristic of a good fuel is moderate ignition temperature. What do you mean by ignition temperature? Ignition temperature is the temperature at which a fuel starts to burn or ignite, यानी flame start हो रही है. ये moderate क्यों होनी चाहिए? I mean, it can be high, it can be low. If it is low, the disadvantage is that the fuel is going to catch fire very fast. That is why we do not like a low ignition temperature. If it is high, the calorific value is going to decrease. That is not what we want. We want a high calorific value. Therefore, the ignition temperature should be moderate. Neither it should be too low, nor it should be too high. Too low, fire is going to be caused. Too high, calorific value is going to be decreased. Low moisture content. Why should the moisture content be low? The moisture content should be low because if the moisture content is high, less heat is going to be produced, because you need the heat to evaporate. If there is more moisture in a fuel, more heat is being used to evaporate that moisture. And the more heat that you are using in evaporating the moisture means less heat is being produced for your useful work in burning the fuel. And what happens when the heat produced is less? Calorific value is going to decrease. I just told you, calorific value is directly proportional to the heat produced. So if the heat produced is less, automatically calorific value produced is less. That is not what you want. So a good fuel should have a low moisture content. Point number 4, low ash content. We will discuss what ash is, but ash is that black powder and some pieces of solid which are not wanted. If the ash content is high, again, more heat is going to be used and less is going to be produced. What will happen automatically? Automatically, the calorific value is going to be less. Hence, the ash produced should be less. So you can see that all these points are related with the calorific value. Moisture should be less, ash should be less, moderate velocity of combustion. Yani the speed of your combustion or burning of your fuels. If your combustion speed is very high, the reaction is instantly going to finish. Not enough heat is going to be produced. So again, that is directly linked to your calorific value. Hence, your velocity should be moderate. It should not be too low also, because if your velocity is low, it's going to take ages for the combustion to take place. You're losing out more if you're wasting your time in producing combustion. A good fuel should not produce harmful products. Harmful products means nitrous oxides, carbon monoxides, other greenhouse gases, CO2, other toxic gases, substances, lead. Because sometimes in petroleum fractions you have lead. That is why you use anti-knocking agents.
and you do not want carbon monoxide and such gases because they are harmful. So therefore a good fuel will also be also have complete combustion, क्योंकि जब complete combustion होगा तो carbon monoxide produce नहीं होगी. Then you look at the economical cost. If the economical cost is low, that is a good fuel. You have to balance the two. अगर मैं आपको एक फ्यूल दूं जिसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, यानी बहुत जबरदस्त फ्यूल है, मगर उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि वो फीजिबल नहीं है, वो आपको बैंकरप्ट कर देगा, तो फायदा क्या है ऐसे फ्यूल का? So even if the calorific value is high but the cost is more, you will not say that is a suitable fuel to use in your application. You need to have a fuel which is optimum. It should have a decent, good enough calorific value. At the same time, the cost should be low or moderate. Easy storage and transportation. You do not want a fuel which is hard, difficult to store. Maybe the cost is more in transporting it, storing it. Maybe it is flammable. You store it and it's going to cause an explosion and destruction, human life, environment around you. So a good fuel should be easy to store and should be easily to transport, easily controllable. Again, this is linked with the explosions. You should easily be able to control your fuel. Okay. Not all combustible substances can be used as fuels for all application. मैंने ये बात पहले भी जिक्र की थी that every fuel which combust, यानी ऑक्सीजन हम उसमें ऐड करते हैं और वो बर्न करता है, it is not necessary that all of them are good. ये लाजमी नहीं है. The reason for the above that even though all fuels produce heat and light on burning, ये याद रखिएगा कि जो भी फ्यूल कभी भी बर्न करे, any fuel which will burn will always produce heat and light on burning. Some will produce more energy than others. That is what you want. More energy, higher calorific value. But you have to judge it. Apart from the amount of energy produced, the choice whether a certain fuel is good for domestic or industrial application depends upon the cost. This is exactly what I told you. पिछली यही बात कर रहा था कि अगर आपका फ्यूल एनर्जी ज्यादा दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, इट इज अ गुड फ्यूल. मगर अगर उसकी कॉस्ट इतनी हाई है कि वो आपको बैंकरप्ट कर दे, then that is not considered a good fuel and आपको उसकी efficiency देखनी चाहिए and availability as well as the pollution that is caused. ये चारों फैक्टर आपको माइंड में रखने चाहिए. कॉस्ट उसकी, एफिशिएंसी उसकी, अवेलेबिलिटी उसकी और पोल्यूशन उसका. जब इंडस्ट्री में काम होता है या कोई फ्यूल सिलेक्ट होता है तो एक चार्ट बनता है, सारी चीजें देखी जाती हैं, उसके बाद एक डिसीजन बनाया जाता है कि हमारा फ्यूल अच्छा फ्यूल है या बुरा फ्यूल है. लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं पहले भी जिसका जिक्र कर चुका था. Two of the most important characteristics of a good fuel are number 1 calorific value and efficiency. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, I am repeating again, the most important characteristic of a good fuel is calorific value. If after today's lecture you do not take anything with you, you should at least take this thing with you, that a good fuel depends upon the calorific value. Okay, I discussed this slide earlier. अब ये देखें, I have given you a calorific values of some fuels. ये आपके पास different calorific values हैं. cow dung है, wood है, coal है. These are solid fuels. Petrol, kerosene, diesel, petroleum fuels हैं. Methane, CNG, LPG, हाइड्रोजन लिक्विड फ्यूल्स हैं. बायोगैस जो है वो आपकी सॉलिड फ्यूल है. अच्छा, लेट मी पिक ऑन माय रोल नंबर. $75.
79, 75? सिराज? यस सर। जी, मैंने आपको ये चार्ट दिया है. You have this chart. Based on this chart, tell me, just looking at the chart without any further information, which is the best fuel from here? जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो। हाँ, तो इस चार्ट में से मुझे रीड करके बताओ किसकी होगी. ये तो मुझे भी मालूम है कैलोरीफिक वैल्यू हाई है. हाइड्रोजन की है सर। हाइड्रोजन की. तो अगर आपको ऐसा कोई चार्ट दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट फ्यूल क्या है, तो आप हाइड्रोजन बोलेंगे. अच्छा, अब मेरा अगला सवाल ये होता है, चार्ट को मैंने देखकर बोल दिया, मैंने मान लिया हाइड्रोजन इज द वेरी बेस्ट फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी है. ओके फाइन, वेरी गुड कैलोरीफिक वैल्यू. देन व्हाई डोंट वी यूज हाइड्रोजन? व्हाई डू वी यूज पेट्रोल? व्हाई डू वी यूज डीजल? हम हाइड्रोजन क्यों नहीं यूज करते? तो सिराज, आपका क्या ख्याल है, हम हाइड्रोजन क्यों नहीं यूज करते? व्हाई डोंट वी यूज हाइड्रोजन? आपने खुद ने कहा ना हाइड्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल. हाँ सर, इसकी एफिशिएंसी कम हो। एफिशिएंसी क्यों कम होगी? दिमाग में क्या आता है? मतलब आप अगर मोटर बाइक चलाते हैं, आप अपनी बाइक, एक सेकंड, आप अपनी बाइक चलाते हैं, आप अपनी बाइक में हाइड्रोजन क्यों नहीं फिल करते? आप अपनी बाइक में पेट्रोल क्यों फिल करते हैं? तो पेट्रोल कमर्शियल है। क्या हुआ? चले, इसका रीजन मैं आपको देता हूँ. पहला पार्ट आपका सही था कि हाइड्रोजन इज द प्लीज क्लोज योर माइक if you're causing a distraction because you're spoiling my videos. Okay, hydrogen is the most efficient fuel due to the highest calorific value. But you need to look at the second points. When the fuel is burnt, we'll come to the charts again. When the fuel is burnt, some of the energy produced is given off as waste heat. The waste heat cannot be used for cooking or other purposes. So, because there is some waste heat, the above phenomena affects the efficiency of a fuel. Very important line, the above phenomena affects the efficiency of a fuel. Where do you think that this is linked? 100% efficiency of a fuel to the heat engine. This is why I focused on the heat engine when I said that in a fuel, the energy is produced into work by a heat engine. The rule of a heat engine is the heat engine is not 100% efficient. Second law of thermodynamics. If someone has forgotten it, please go look over that law or look over my slides. So to date, no fuel burning device is 100% efficient. आज तक ऐसा कोई फ्यूल नहीं हुआ है जो 100% efficient हुआ हो. अब ये देखें, common fuels used based on the fuel characteristics. Hydrogen as a fuel. अभी आपने बात की थी, hydrogen has the greatest calorific value, 150,000. It should have been used as a fuel. But look at this. It is considered the best fuel as it has the highest calorific value, but the problem with hydrogen which makes it inefficient, it is highly flammable. आप अपनी पेट्रोल गाड़ी के अंदर डालेंगे तो या तो आप, मेरा ख्याल है, नहीं बचेंगे इधर, दुनिया आपकी जिंदगी कहीं और हो जाएगी फिर. इट इज हाईली फ्लेमेबल. देयर आर डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्ट. नॉट ओनली इज इट हाईली फ्लेमेबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन, handle hydrogen, storing hydrogen. It's expensive, it's flammable, it's risky. Therefore, hydrogen is only used as a fuel only when absolutely necessary. Example in rocket fuel. रॉकेट फ्यूल के अंदर आपको लाजमी हाइड्रोजन यूज करना होता है क्योंकि आपको हाई कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए. तो ये जो रॉकेट्स लॉन्च होती हैं, जो रॉकेट्स जानती हैं, उसके अंदर मजबूरी के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल यूज किया जाता है, डिस्पाइट इट बीइंग एक्सपेंसिव, क्योंकि और कोई चारा या रास्ता नहीं है. मगर आम गाड़ियों के अंदर हाइड्रोजन नहीं यूज करते क्योंकि उसके नुकसानात ज्यादा होंगे. Even though I repeat, it is the most efficient fuel. Hydrogen is the most efficient fuel. It is going to be the best fuel. But
the overall disadvantage overturns the advantage and reduces the efficiency. So if I give you an open question that even though hydrogen is considered the most important fuel based on its calorific value, why is it unsuitable to use it in your cars? For example, that is a dummy question. Not necessarily it's going to come like that, but this is the answer. This is exactly what I'm telling you. Do not rely on my slides. The information you get from the slides, read up on it. आपको पढ़ना पड़ेगा. बगैर पढ़े, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, you will not do well in my course. So please study from books. Please study every day what I'm teaching you. Get some added notes. Make your own notes. चलें, मीथेन और एलपीजी एज अ फ्यूल. अब आप यहां पर नोट करें मीथेन और एलपीजी को. एलपीजी 55,000 है, मीथेन 50,000 है. रिलेटिवली बाकी जो चीजें हैं ना, उनके निस्बतन ये ज्यादा बेहतर हैं. कैलोरीफिक वैल्यूज इनकी ज्यादा है. अगर कोई मुझे ये बोले बायोगैस ज्यादा है मीथेन और केरोसिन या पेट्रोल से, और काउ डंग ज्यादा है और वुड ज्यादा है, तो आई एम सॉरी, आप अपनी फ्यूल के अंदर सॉलिड्स नहीं डालते, वो सॉलिड फ्यूल्स हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड फ्यूल्स ओवर हियर. बेस्ड ऑन द लिक्विड फ्यूल्स, मीथेन इज मोर and LPG is more. They both have a fairly high calorific value as compared to others. So you should know or understand how to read these charts. They burn with a smokeless fire. That is what you want. What is smoke will be discussed tomorrow. And hence they do not cause pollution. आपका pollution नहीं cause होगा. They are ideal to use as domestic fuels. यही वजह है कि मीथेन और LPG हैं, ये आप कुकिंग के लिए यूज करते हो, डोमेस्टिक रीजन के लिए. एक तो इनकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी है, दूसरी ये स्मोकलेस होते हैं तो पोल्यूशन नहीं कॉज करते. आपकी हेल्थ रिस्क पे नहीं है कि आप धुआं इनहेल करो, टॉक्सिक मटेरियल इनहेल करो और हॉस्पिटल पहुंचो. सो डोमेस्टिक फ्यूल्स के लिए अच्छे होते हैं. बात आती है पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल्स. बोथ पेट्रोल एंड डीजल आर मेनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स. गाड़ियों में यूज होते हैं. इनकी एडवांटेज तो ये है कि कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी है, रीजनेबली अच्छी है. मेन डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड अवेलेबिलिटी. ये क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. पेट्रोलियम इज अ नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स. सैकड़ों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इन प्रोडक्ट्स को फॉर्म होने के अंदर. अब पॉसिबल नहीं है, दे आर डिप्लीटिंग. सो दैट इज वन डिसएडवांटेज. Another disadvantage is combustion results in harmful gases released in the atmosphere. When we talk about harmful gases, three types of different gases come into mind. One is carbon monoxide, other are NOx gases, जिनको हम नाइट्रिक गैसेस बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, ये जो गैसेस होती हैं. और तीसरी जो, जी एक सेकेंड, तीसरी आपकी सल्फर गैसेस होती हैं जिसके अंदर SO2, SO3 ये होती हैं. बोलिए, आप आज हैं? मैं तो समझा आप नहीं थी आज. सर बोले मैं बोले. ठीक था सर. अच्छा, जैसे आपने कहा कि मीथेन और एलपीजी जो है वो स्मोकलेस होती हैं, तो हम उनको क्यों नहीं गाड़ियों में यूज करते? उनकी एफिशिएंसी भी हाई होती है, तो वो पोल्यूशन भी कॉज नहीं करेंगे. तो हम पेट्रोल और सीएनजी वगैरह, डीजल जो है वो क्यों यूज करते हैं? देखें, अगर आप उसको यूज करें, हो सकता है उसके अंदर कोई और डिसएडवांटेज हो कि मे बी इट्स फ्लेमेबल इन अदर प्रॉपर्टीज. कुछ हो सकता है कि अगर आप एंटी नॉक इंजन की बात करें, अगर आप इंजन के अंदर बात करते हैं, तो उधर मैंने भी हमेशा पेट्रोलियम की ही बात सुनी है, मगर आई विल आंसर दिस क्वेश्चन टुमारो. मेरे इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा. आई विल गूगल इट, आई विल आंसर यू दिस टुमारो. हैंग ऑन टू इट, इट्स अ गुड क्वेश्चन. मुझे सही आंसर नहीं मालूम इस वक्त. सही है सर. एलपीजी यूज होती है व्हीकल्स में. एलपीजी यूज होती है, मगर उनके डोमेस्टिक के ऊपर मुझे नहीं मालूम है. मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे देखना पड़ेगा. हर चीज़ मुझे भी नहीं मालूम होती. फर्स्ट टाइम मैं भी ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ, मगर मैं आपको कल इंशाल्लाह बता दूंगा. अच्छा, लास्ट चीज़ आज के लिए ये है कि कुछ फ्यूल कॉमनली फाउंड इन पाकिस्तान. आपके पास नेचुरल गैस होगी, पेट्रोलियम होगा, कोल होगा और यूरेनियम होगा. यूरेनियम आपका न्यूक्लियर फ्यूल हो गया.
टाइप्स ऑफ कोल फाउंड इन पाकिस्तान, 3 टाइप्स ऑफ कोल होते हैं, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट। ये 3 टाइप्स ऑफ कोल हैं। वैसे कोल की 4 टाइप्स होती हैं। This is the reference material I have given you. This is the book that we are following, Marion and Smith. That is one of the books. I will give you 2 or 3 books. These are some of the links that I have used which may help you in your studying. Apart from this, if you find any other link, you are most welcome to use it. Any question?